Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So, children, today we'll discuss a very important topic that is known as. देखो बेटा, जिसका आवाज आते रहेगा मेरे को बता देना चैट बॉक्स में, हम चुपके से उसको म्यूट कर देंगे हमेशा के लिए. Okay, sir. ठीक है सर. Ayush Kumar. नहीं कर सकते हो. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. कौन है बेटा? एक बार चैट बॉक्स में नाम दे दे उसका. Shabnam. शबनम. Sir, unmute all, sir, please. Lot of disturbance is there. Yes, sir. Please unmute first of all, sir. First of all, I have to unmute everybody, right? Thank you, sir. Please see. Don't make noise. See, I'm getting complaint. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. Good morning. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, right. See, today we are going to learn about a very important topic. Okay, that is known as, children, photo electric effect, right? Children, what is the name of topic? Photoelectric effect. Okay, so actually photoelectric effect is a shortcut. Actually, photo means one term is there, photon. We'll come to know about each and every term. Don't get panic, okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. And then electric actually stands for electron, not for electricity. Okay, sir. And effect means ejection of electron. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, removal of electron. We will come to know how we are removing electron and everything. Okay. But Yes, before sir. that, let us see what is photon actually. Children, please see. Yes, sir. Where is noise is coming? Supriya Ghoshal. Supriya Misra. Supriya Ghoshal. Ghoshal, Nafia Jadin. Any another Good name? morning, sir. Okay, so photoelectric effect, right?
Yes, sir. Yes, sir. So now actually the topic name is, in full fledged we can say that electron is ejected. Okay, So what is the meaning of ejected? ejected means removal. Removal. Ejected, rejected, okay, eliminated. Yes. हाँ, हम लोग फूल को तोड़ते हैं ना, फूल को, गुलाब फूल को टक से, Yes, sir. हम लोग फ्लावर को क्या कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं फ्रॉम द ब्रांच. तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड या इजेक्टेड Chinese फ्रॉम smart word. Erect. या surface of metal with the help of what? Photon. Photon. So today we will discuss about this concept only. How electron is removed from a surface of metal with the help of photon. Okay. Yes, sir. So sir. first we have to know what is photon. Our target is what is photon, how it is ejected, and what happened after ejecting. Okay. Yes, Okay, sir. Okay, sir. Okay. So first we will learn about photon. So this is sun, children. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. And from sun we are, sir, one or two person still not maintaining silence. Just let me know. Okay. Please give me some name. Help me, children. You have to be little bit alert. Give me the names. Chat. Put in the chat box. So some sort of energy is coming from sun, children. Okay. In daily life we are encountering or not. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So from today onwards you should know that this energy is in form of whatever the energy we are getting from sun, no? Okay, this is known as electromagnetic radiations. And radiation is the standard name for what? Waves. Yes, sir. Okay, children? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are getting lot of electromagnetic radiation, but today we will restrict ourselves to light only. Light. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Light. White light. Next is, this energy is coming from the sun to us. Okay? And they are coming in form of what? Waves. Yes. So do you know some important terms related to waves? Yes. Important terms related to waves. Waves are having two components. That is okay. One is, children, first of all, Amplitude, frequency. yeah, velocity. 3 into 10 to the power 8 meter per second. Yeah, velocity of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per Meter per second. Number 2 is frequency. And okay. Okay, frequency. Frequency, right? Yes, sir. Yes, Then sir. then is wavelength. Wavelength. That is known as lambda. Amplitude. Then is known as wave number. Mu bar. Meters. Okay. Mu bar. Then is what? Amplitude. Okay. Then is crest. Troughs. Right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then is known as quantum.
and photon. Both are same thing. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I will tell you what is quantum, what is photon. Don't worry. Just slowly I will introduce each and everything. Right. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसका घर में किचन उचन सब धड़ाम धूम चल रहा है बाबा? एक दो तो नाम दो ना बेटा. कौन है? Okay, children. So regarding waves, how many terms are there, children? 7 One. terms. 7. 1, 2, 3, 4, 5, Seven. 6, 7. Right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So we'll try to discuss. Okay. This is only the wave. Okay. Yes, sir. Okay. So suppose this is known as crest, children. Okay. Yes, Yes, sir. sir. So yeah, the length between two consecutive crests is known as lambda. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Right. And this also known as lambda. 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5 point. Right. Yes, Yes, sir. From here to here, one cycle, one lambda. Okay. Why one cycle, children? From here to One here, complete wave is formed. one cycle. One Yes. complete oscillation has Then occurred. 2 cycle, then 3 cycle, then 4 cycle, then 5 cycle. Right. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So suppose this is 1 point. Okay, and if you allow this wave to travel in this way, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and Yes, sir. and if you have noted down the time, okay, suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. Okay, so suppose you Okay, have sir. noted down the time. Okay, and you got 2 seconds. In 2 seconds, this whole wave was passed. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Like it, sir. suppose you are standing here और आपके सामने से एक ट्रेन पार हो रहा है डिग 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 करके, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह से वेव भी पार हो रहा है. कितना समय लगा पार होने के लिए? 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. 2 सेकंड में कितना साइकिल पार हुआ बताओ? 5. 5. 5 साइकिल पार हुआ. 5 cycle. ठीक है. इसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी. Okay, sir. ठीक है. इसी इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा? Frequency. Frequency. फ्रीक्वेंसी. इसको सॉल्व करो तो कितना फ्रीक्वेंसी आ गया? 5. 2.5. 2.5 साइकिल 2.5 पर सेकेंड. Hertz. CPS. 2.5 CPS. ठीक है? Yes, sir. Yes, और sir. साइकिल और साइकिल पर सेकंड को हम लोग शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, बट पर सेकंड. और जो C और P है उसको कांस्टेंट रखते हैं, मतलब साइकिल पर सेकंड. राइट. हेलो. Yes, sir. वो ये अंडरस्टूड है कि भाई पर सेकंड में क्या पार हुआ है? साइकिल पार हुआ है. Cycle. ठीक है. इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 2.5 हर्ट्ज. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, हर्ट्ज sir. का मतलब क्या हो गया फिर? पर सेकंड. Per second. Per second. Per second. चलो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड बात हो गया. सर Yes, sir. फ्रीक्वेंसी का ये Yes, sir. सिंबल को क्या बोलते हैं? इसको सर ये सिंबल जो है वी जैसा. HERTZ हर्ट्ज. नहीं सर, ये जो H-ray. सिंबल है सर.
टी जैसा। न्यू जो न्यू LHS वाला सिंबल है। न्यू न्यू, ओके सर। और इसको बोलते हैं म्यू। हाँ सर। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये हुआ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। और लैम्डा तो समझ में आ ही गया, यहाँ से यहाँ हाँ, तक के सर। डिस्टेंस को हम लैम्डा कहेंगे, है ना। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अच्छा, और एक चीज हम बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस 1 मीटर है बच्चों। ओके, Yes, sir. यस Yes, sir. कितना मीटर है? 1 1 meter. 1 meter. तो हम फिर एक इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे कि 1 मीटर में कितना साइकिल है, बताओ 1 मीटर में कितना साइकिल है? 5. 5 cycle. 5 साइकिल या 5 लेंथ। ओके, 5 लैम्डा, Five lambda. Yes, sir. 5 लैम्डा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ, तो इसको हम लोग इसको कहते हैं या लैम्डा बोलते हैं या वेव लेंथ बोलते हैं। तो हम बोलेंगे 1 मीटर के अंदर कितना वेव है बेटा, कितना वेव लेंथ है? 5 lambda. 5 lambda. 5. तो इसको हम लोग कहेंगे 5 हाँ 5 Lambda. 5 लैम्डा इन 1 मीटर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 Yes, लैम्डा sir. इन 1 मीटर। और इसी को और एक टेक्निकल नाम से, बार बार इतना तो नहीं बोलेंगे ना, 5 लैम्डा इन 1 मीटर, 5 लैम्डा इन 1 मीटर। तो इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। In short. इन शॉर्ट, शॉर्टे में तो प्रॉब्लम है, Child. ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? Wave Wave number. Wave तो number. अब हाँ देखो, वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर कितना आया हमारे पास? 5 पर मीटर, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ठीक है, अच्छा, कोई बोलेगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो अब लैम्डा का वैल्यू बताओ कितना होगा? तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, हाँ Yes, सर। sir. हाँ, और sir. 1 मीटर 0.20. समझ Sir, में आया बात? 0.20 meters. हाँ, यस, यहाँ से यहाँ तक 0.0, Yes, sir. 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2। Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, यहाँ पर हमको लैम्डा का वैल्यू पता चल गया 0.2 मीटर, राइट। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Sir. तो देखो, इसको हम लोग इजी वे से निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई वेव नंबर। Yes, sir. देखो निकाल के देखो आ रहा है कि नहीं। 1 बाई वेव नंबर लिखो, कितना आ रहा है? हाँ सर। 0.5. 5 पर मीटर आ रहा है। हाँ Yes, sir. Yes, तो sir. लैम्डा आ जाएगा 0.2 और ये मीटर ऊपर चला जाएगा। हाँ, Yes, sir. आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और इस फार्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। हाँ सर। yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये सब कुछ फार्मूला आपको मालूम होते रहना चाहिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो गया, लैम्डा का आइडिया हो गया, वेव नंबर का आइडिया हो गया। ठीक है, Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, नोट डाउन करते जा रहे हो। Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि जो वेलोसिटी होता है बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है लाइट का। Okay, sir. और Yes, sir. हाँ, और दूसरे शब्दों में कहें, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. और उसका फार्मूला क्या होता है मालूम है? उसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू Wave length लैम्डा, to frequency. फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. और इस इक्वेशन से हमारे पास c बाई लैम्डा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आएगा। हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. c Yup, बाई sir. फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लैम्डा आएगा। Yup. Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. ओके, इसको, इस फार्मूला को ऐसा लिख सकते हैं, c और ये 1 बाई लैम्डा था ना, हाँ. ठीक है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Into C- wave number भी हो सकता है. या D into wave number. समझ में आ गया बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, ये चीज कांस्टेंट है, ओके।
तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा क्या होगा? डिक्रीज होगा, लैम्डा Decrease घटेगा। होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके। और नेक्स्ट हम लोग अब आगे बात कर रहे हैं, और वो है, ये देखिए, ये जो एनर्जी आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, कैसा आ रहा है? कंटिन्यूअस आ रहा है या डिसकंटिन्यूअस? Continuous. कंटिन्यूअस। Continuous. या Continuous. एक, हाँ आज के बाद एक अगर ले मैन को पूछेगा, ले मैन को, ठीक है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है उससे पूछेगा कि ये जो रेडिएशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एनर्जी जो आ रहा है कैसा आ रहा है, तो लोग बोलेगा कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, Yes, sir. बट दिस इज रॉन्ग। ओके, Yes, sir. हाँ, क्योंकि जब हम इसको माइक्रो लेवल पे देखते हैं, ओके, तो एक कंटिन्यूअस नहीं। एक साइंटिस्ट था, ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाँ बोलो बेटा, रुको मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, ठीक। तो एक साइंटिस्ट का नाम था प्लैंक। Blank. ठीक है बेटा, Okay, sir. Yes, sir. यस सर। और उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उससे पहले मैं और 2-3 जन को म्यूट कर देता हूं तो मेरे को ठीक लगेगा। तो उसने क्या कहा मालूम है, क्योंकि ये तो वेव होते हैं ना, Hmm. और बहुत पतले पतले वेव्स होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ये लोग तो कोई कंक्रीट पिलर जैसा कोई चीज नहीं है ना, कि बड़ा सा वायर लगा दिया सूरज से हम लोग के पास डायरेक्ट। हेलो, 440 वोल्ट का electricity. हाँ वैसा तो आ नहीं रहा है, No, तो sir. इसलिए हाँ, sir. कंटिन्यूअस आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो Yes, ये लोग sir. तो बहुत पतले पतले होते हैं, तो पतले पतले होने का चांसेस टूटने का ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो? Yup. Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो उनका प्लैंक का कहना था कि ये जो एनर्जीज हमारे पास आते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आते हैं बच्चों। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये कंटिन्यूस नहीं आता है हमारे पास, किस तरह से आता है बोलो? ये डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. Yes, continuous. डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आता है, न्यूअस फॉर्म में। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किस पे भरोसा करोगे, लेमैन पे या साइंटिस्ट पे? Scientist. साइंटिस्ट पे, Scientist वो पे। ज्यादा अच्छा से जानता है ना, इसलिए उसने कहा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। ओके, Okay, sir. और उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके, दे आर गिविंग एनर्जी, ओके, बट दैट एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, it is traveling in which system? डिसकंटिन्यूअस। Continuous form. Continuous. Okay, and he told that one particle, one box, okay, as quantum. Did you understand? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस सबको क्वांटम बोला, वो इसको भी क्वांटम बोला, क्वांटम। एक सेगमेंट को। हाँ, तो ये जो क्वांटम को क्या बोला मालूम है? उसने कहा, या क्वांटम को कहा पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. व्हाट इज क्वांटम, टेल मी? Packet of Energy. या ऑफ which radiation? Electromagnetic radiation. Okay, energy is coming in continuous or discontinuous? Discontinuous path. Discontinuous. Okay, and each packet of energy is known as what? Quantum. Quantum. Okay, for any type of electromagnetic radiation. Okay, Yes, sir. okay. Sir. And from sun we got various type of electromagnetic radiation, from cosmic rays to radio Gamma rays. waves, right? यस सर। हाँ, तो Infrared उसी में, ray. हाँ, वेट, माइक्रोवेव। उसी में एक छोटा सा रेंज है, उसको कहते हैं व्हाइट लाइट। Okay.
Okay, sir. right? Yes, sir. Yes, So sir. all white light, yeah, white light is an electromagnetic radiation, but every electromagnetic radiation is not white light. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो स्पेशली क्योंकि व्हाइट लाइट को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो उसने व्हाइट लाइट के क्वांटम का एक स्पेशल नाम दिया, Quantized. Spectrum of light. फोटोन. Photon. सर क्वांटम हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हाँ. होता है. हाँ, क्वांटम का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सबका वैल्यू अलग होता है. सबका वैल्यू अलग अलग होगा, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, ठीक है? Yes, sir. और फोटोन क्या है बोलो? फोटोन Quantum of white light. क्वांटम ऑफ लाइट. या Packet पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ Packet of energy of light. लाइट या क्या कह सकते हैं? क्वांटम ऑफ लाइट. Yes, sir. क्वांटम ऑफ लाइट, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. हर फोटोन क्वांटम है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हर फोटोन क्वांटम है? No, Yes, sir. 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 Yes, यस sir. सर, द Yes, आंसर इज sir. यस सर, यस सर, यस सर. Yes. ठीक है, Yes, sir. Okay, लेकिन sir. हर क्वांटम देखो, हर फोटोन क्वांटम है, अगर हर क्वांटम लेकिन फोटोन नहीं हर क्वांटम फोटोन नहीं है. Okay, sir. अब हम कॉस्मिक रेस का, अगर हम कॉस्मिक रेस का क्वांटम बोलेंगे तो क्या हम उसको फोटोन बोल सकते हैं? No, sir. No, नहीं, sir. sir. रेडियो वेव्स के क्वांटम को हम फोटोन बोल सकते हैं, No, sir. No, Sir. sir. लेकिन व्हाइट लाइट के क्वांटम को फोटोन बोल सकते हैं. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस, लाइट के क्वांटम को हम फोटोन बोल सकते हैं, बस. Yes, sir. आ गया Yes, समझ sir. में? हाँ, Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तुम लोग बोलना क्वांटम क्वांटम और फिर कब फोटोन होगा. यहाँ से हम घूम रहे, देखो बोलो क्वांटम क्वांटम Quantum, quantum. क्वांटम क्वांटम क्वांटम. यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ये व्हाइट लाइट है. Photon. 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 फोटोन क्वांटम दोनों यूज करेंगे. Okay. और फिर यहाँ पर Quantum, quantum. Quantum. यहाँ पर फिर क्वांटम, Quantum. Quantum. यहाँ पर क्वांटम, Quantum. यहाँ पर क्वांटम, राइट? Yeah. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं बोलो? Photon, quantum. Photon and quantum. क्वांटम एंड फोटोन दोनों यूज Photon कर and सकते हैं. quantum. समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट. Yes, sir. तो उसने Sir, कहा Sir, sun Planck ने also emits gamma energy, ना? क्या? Sir, sun से gamma radiation भी तो निकलता है ना? सब जितना भी रेडिएशंस निकलेगा सब बताएंगे. अभी हम किस पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं बताओ? White light. ये देखो टॉपिक का White नाम light. क्या है बेटा? Photo elect. फोटो. ठीक है, बढ़े आगे. Photoelectric Yes, effect. sir. ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटम की बात कर लेते हैं. एनर्जी ऑफ क्वांटम, ठीक है, Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. Yes, इज sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ओके, Yes, Yes, sir. yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. जिस वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका क्वांटम का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा ज्यादा होगा. होगा. ज्यादा होगा. अब एनर्जी ऑफ क्वांटम के लिए हम ई लिखें. Yes, sir. Yes, इज sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी लिखें. Yes, sir. Yes, sir. साइन हटा दे प्रोपोर्शनलिटी का, Yes, sir. ठीक है. हाँ, sir. कांस्टेंट लगा दें. Yes, sir. Yes, sir. 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 ठीक है, ये आपका एक फार्मूला आ गया क्वांटम थ्योरी से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से. ई क्या है बोलो? Energy of quantum. एच क्या है बोलो? Planck's constant. Planck's constant. क्यों प्लैंक्स कांस्टेंट?
क्योंकि प्लैंक ने ये थ्योरी प्रपोज किया। हाँ, प्लैंक ने ये थ्योरी प्रपोज किया था, ठीक है। Okay, यस sir. सर। ठीक है, इसका वैल्यू बोलो। 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड, राइट। यस सर। आप लोग को भी Yes, याद sir. हो जाएगा। हाँ, इसको ही प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है बोलो? पर सेकेंड, Hertz. ठीक है। हर्ज पर सेकेंड। Yes, sir. एक बार देखो तो, एनर्जी, प्लैंक्स कांस्टेंट का एनर्जी का किस में जूल। आना चाहिए? जूल में आना चाहिए। Yes. यस सर। प्लैंक्स Yes, कांस्टेंट का sir. प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट क्या है? जूल सेकेंड। Joule per second. Joule second. फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। Second Second inverse. inverse. ऐसा नहीं लग रहा ये कट जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो जूल जूल आ गया कि नहीं? Joule, huh? यस सर। LH is equal to RHS. Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये मतलब फार्मूला वैलिड है, ओके। Yes, sir. Okay, sir. और अगर फ्रीक्वेंसी व्हाइट लाइट का है यस तो हम इस क्वांटम की जगह क्या लगा सकते हैं? Photon. फोटोन लगा सकते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। Sir, ये derivation था? हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब कितना के बराबर होगा? अगर हम मान लेते यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और अगर हमको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है तो हम कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं बोलो? एक पैकेट, Yes, sir. नहीं तो यस दो सर। पैकेट, यस सर। नहीं तो 3 पैकेट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, फ्रैक्शन में कभी भी हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। Always whole number. ऑलवेज Yes, होल sir. नंबर। जैसे क्लास Yes. के अंदर में कितने स्टूडेंट हैं तो नंबर कभी भी होल नंबर ही आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी ऐसा आएगा 10.5 स्टूडेंट प्रेजेंट है? No, sir. No, sir. नहीं आएगा। तो वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी है। थोड़ा साइंटिस्ट लोग पे भरोसा करो, सब चीज पता लग जाएगा आपको। एनर्जी एब्जॉर्ब NH न्यू, राइट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. N क्या है बोलो? एनर्जी ऑफ फोटोन। Energy of photon. 1 2 3 4, ये होल नंबर है, नंबर ऑफ Whole number. ठीक है। और ये एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. ये चीज हमेशा रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। Okay, okay. समझ में आई बात? Yes, Okay, sir. sir. यस सर। ओके। सवेरे सवेरे मिल्क पैकेट लेने जाते हैं कभी? हाँ, sir. हाँ, Yes, sir. sir. हाँ सर। ठीक है, पैकेट कितना लेते हैं? एक या दो लेते हैं। एक या दो? कभी उसको बोलते हैं कैंची से फाड़ के थोड़ा सा और दे दो? No, no. Sir. Sir. वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो एक पैकेट ले लो, दुकानदार ही बोलेगा या तो एक ले लो, नहीं तो दो ले लो, नहीं तो 3 ले लो बाबा। नहीं बात? That's impossible. यस हाँ, सर। तो Yes, तो sir. जब हम डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग वही कॉन्सेप्ट थोड़ा हम लोग पढ़ाई में लगा दे रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो जैसे क्लास में स्टूडेंट हमेशा प्रेजेंट रहते हैं तो पूरा बॉडी के साथ प्रेजेंट रहते हैं। कभी देखे खाली उसका सर आ गया बाकी सब घर में है? Sir. तो वही चीज है। Then the student must be an alien. स्टूडेंट या तो पूरा आएगा नहीं तो पूरा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, sir. अगर Yes, आधा आया sir. तो alien हो Yes, जाएगा sir. तो वो. ठीक है, अब देखो तो ये सब चीज हम लोग दिमाग लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना मिनट बाकी है? 30। अब हम लोग काम का बात करने जा रहे हैं। Yes, sir. देखिए, यहाँ पर आपके पास कुछ मेटल है बच्चों, जैसे सीजियम मेटल है, ठीक है। यस सर। हेलो, Yes, sir. sir. सीजियम मेटल क्यों किए? मान लेते इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस। हेलो, सबसे Yes, कम होता है ना? हाँ, सबसे कम होता है या कम होता है, चलो ठीक है। अगर हम फ्रांसियम वगैरह को नहीं यूज करते तब, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये सीजियम के मेटल्स हैं और मेटल में
ये क्या है, उसके एटम्स, राइट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. एटम आपको पढ़ा चुके हैं ना? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। Yes, और sir. ये एटम के अंदर का ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है बेटा? ठीक है। और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है? यस। हाँ Yes, सर। sir. और ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, नेगेटिवली यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. सर। ओके, जो पकड़ के रखता है ना, जिस फोर्स से ये पकड़ के रखता है, उस फोर्स को, उस एनर्जी को, हाँ उस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाँ उसको, Electrostatic force. हाँ Yes, ठीक है, you. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ने फोर्सेस आगे ऑफ बढ़ने दो, अट्रैक्शन। ठीक है सर बेटा, को बोलने ठीक दो। है, अब हमको बोलने दो। Okay. तो सब चीज है जो आप जो बोल रहे हो वो एकदम 100% करेक्ट है, उसी का नाम है बेटा थ्रेश होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ के रखा हुआ, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है? Yes, sir. यस सर। यस और सर। एक स्टाइल वर्ड यूज करें, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है? दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अजीब टाइप का नाम दे दिया, उसका नाम है वर्क फंक्शन। दे दिया, उसका मर्जी और क्या बोला जाए, ठीक है? क्या Yes, sir. फंक्शन? वर्क वर्क फंक्शन। फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। Threshold व्हाट इज energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी? The energy Electricity required to forces of hold the attraction. electron. या With an हाँ, जो जिस atom. एनर्जी से न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं करके पकड़ के रखता तो बाहर Electron निकला सब जाता हट है. वो जाते इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, कहीं कहीं चला जाता है, ठीक है? घूमने चला Yes, sir. हाँ, घूमने फिरने चला जाता है, जैसे अभी कोरोना वायरस घूम रहा है वैसे। अच्छा है ना, सब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ पकड़ के रखा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो अगर ना कोरोना वायरस के अंदर भी कोई चार्ज रहता ना, अगर पता लग जाए ना कि वो लोग में कोई चार्ज है, बहुत अच्छा होता है. तो बहुत अच्छा होता। हम लोग ना जगह जगह पर ना ये जो जितना भी टावर सब लगा हुआ ना, उसमें हल्का सा कोई चार्ज दे देते, तो सबको अपने अपनी तरफ में पकड़ पकड़ के अट्रैक्ट कर लेता और सरफेस के ऊपर जमा कर देता, यस सर। Yes, sir. ठीक है? हाँ, और हम लोग सरकार भी ना कुछ हम लोग को आइटम देती थी जिसमें चार्ज रहता, बोलता डेली अगल बगल घुमाते रहिए ठीक है? यस सर। Yes, sir. लेकिन Oh, उसमें yes, sir. शायद कोई चार्ज नहीं है या न्यूट्रल होगा वो, ठीक है? ओके Yes. सर। Yes, sir. ठीक है, एनी हाउ, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां से मान लेते ये जो सन है ना, हेलो, यही सोलार एनर्जी का मेन फंक्शन है, यही वाला। यस सर। Yes, sir. तो वहां से एक पैकेट आया बच्चों, इस पैकेट को क्या बोले? Quantum. फोटोन। Photon. Quantum. ठीक है, क्वांटम भी बोलो, फोटोन भी बोलो, लेकिन लाइट आ रहा है तो फोटोन बोलो, अच्छा है? यस Yes. सर। Yes. Yes. फोटोन पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ। मान लेते इस इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के रखा है कितना एनर्जी से मालूम है? 3 जूल से। ओके। मान लेते हैं, ठीक है? assumption। हाँ, और ये जो फोटोन आ रहा है मान लेते 10 जूल से आ रहा है। ओके। आया टिक 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 धड़ाम से मारा इसको, ओके। इसी को कहते हैं Yes, स्ट्राइक। sir. स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन हाँ, पार्टिकल्स। जैसे फुटबॉल में मारते ना धड़ाम से, हाँ सर। ठीक है? तो वैसे मारा, और वैसे मारा तो ये जो फुटबॉल है, इलेक्ट्रॉन है, ये ब्राम से निकल गया यहाँ पर। अच्छा। निकल गया कि नहीं? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. सर। ठीक है? तो अब देखो, अब आपका खाली कैलकुलेशन यहाँ पर क्या करना है कि आपने कितनी एनर्जी से मारा? 10 जूल से joule. 10 जूल। 10 जूल में कितना एनर्जी यूज हो गया निकालने के लिए? 3 जूल। 3 joule. बचा कितना? 7 7 जूल। joule. 7 जूल। और आपको तो मालूम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा काम करता है। यस Yes, सर। sir. सर। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन के पास में अब एनर्जी कितना है? डेल्टा ई डेल्टा। हाँ, तो कितना आ गया? 7 जूल। 7 7 जूल। joule. यस समझ सर। में आया बेटा? यस सर। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, ये sir. 7 जूल इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मालूम है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इट बिकेम काइनेटिक। हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको फोटोन से इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी।
हाँ, अब ये चल रहा है तभी ना काइनेटिक एनर्जी है। ओके हाँ, ओके सर। ओके तो मोशन में काइनेटिक, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कहाँ से आया? फोटोन से आया। यप Yes, ठीक sir. है, यस सर, यस यस सर सर Yes, sir. ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि आपने जो 10 जूल दिया वो 3 जूल लगा उसको निकालने में और 7 जूल काइनेटिक एनर्जी में। बदल गया हाँ यस सर पूरा हिसाब Yes, किताब sir. मिला। यस सर यस Yes, sir. ठीक है, इसको हम लोग ऐसा बोल दें, एनर्जी ऑफ फोटोन, इज हेलो, इक्वल टू एनर्जी ऑफ ये क्या था एनर्जी? रिमूविंग एब्जॉर्ब ये threshold energy. थ्रेशोल्ड स्टाइल से एनर्जी बोलो, स्टाइल से। थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी Work function. वर्क या फंक्शन THRE, थ्रेस होल्ड एनर्जी। ठीक है, यस सर, और Yes, ये कौन सा sir. एनर्जी था? ये काइनेटिक एनर्जी था केई ये kinetic energy था. ठीक है बेटा, यप यस सर, Yes, sir. और यस सर यस थोड़ा और सर, Yes, स्टाइल sir. लाएं। अगर ये नॉर्मल देहाती भाषा समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड लाएं। यस सर यस Sir. आर यू सर, रेडी फॉर स्टैंडर्ड? यस सर Yes, ब्रिंग इट sir. ऑन Okay, now suppose the energy of this photon is h nu ओके and this work function is h nu naught. एच न्यू नॉट ओके ये भी तो एक एनर्जी है, यप ये भी तो एक Yep. एनर्जी Yes, है, yes, sir. राइट? Sir. हेलो, यस Yes, सर Yes, sir. and this kinetic energy is equal to half mv square. यस सर यस सर, Can we Yes, write sir. like this? H yes nu, sir Yes, sir. h nu naught लिख सकते हैं। यस yes सर sir Sir. ठीक है, देखो ऐसा लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यस Yes, सर, यस sir. सर ऐसा लिख सकते हैं। हाँ एच को हाँ, कॉमन yes, sir. ओके, Yes, यस sir. सर, yes sir ठीक है। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी बड़ा होना चाहिए? एच म्यू, न्यू या तो, हाँ, या तो बराबर होना चाहिए और नहीं तो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यस सर yes Yes, sir यस sir. सर, हाँ, अगर बराबर होगा तो निकल जाएगा लेकिन वहीं रुके रहेगा क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा। या Yes. हाँ, Yes, yes sir. sir yes sir और अगर ज्यादा रहेगा तभी निकल के उसमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी आएगा। यप Did you understand? Yes, sir. yes Yes, yes sir. sir Yes, sir. ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। हम लोग को कुछ कुछ वो लोग इक्वेशन देगा, फिर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कल देख लिए थे ना, यस सर तो हम लोग को Yes, वेलोसिटी sir. भी निकल जाएगा कि किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, राइट? यस सर ओके yes सर, sir Sir. ठीक है, तो ये सब चीज पहले नोट डाउन करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए तो देखिए, आपने क्या डाला? फोटोन डाला, ठीक है, yes sir Yes, Yes, sir. sir. और थ्रेशोल्ड एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया यस सर Yes, sir. yes और sir उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया। यस सर इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो यस इलेक्ट्रिक सर, यप सर ठीक है बेटा, यस सर yes Yes, sir Sir. ठीक है, थोड़ा जल्दी लिख लो इसको। सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हाँ, ले लो ले लो। हेलो, हाँ सर, हाँ, कम कम सर, आर यू कमिंग टुडे? ओके ओके, कैन यू टॉक इन इंग्लिश, हिंदी? ओके ओके, नो सर, वी विल टेक 58,000। 58, No. हाँ 58 सर, टोटल गारंटी नो सर, assurance of, no 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 no,
58 sir. म्यूट करना 58 चाहिए ना total. काका म्यूट Total everything, managing everything. Right. Okay. Okay, children. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so, Sir. Yes, sir. okay, now you can discuss some more information about light. Okay. Yes, sir. यस सर Light consists of so many parts. Vibgeo. Then, Which is this color? Violet, indigo. Violet. violet, This is indigo, violet. blue, वायलेट green, इंडिगो Indigo. orange and ग्रीन red. येलो ऑरेंज एंड रेड Indigo. This is Blue. ब्लू Blue. blue. This is Green. Green. ग्रीन green. This is Yellow. येलो yellow. This is Orange. Orange. ऑरेंज orange. This is Lal. रेड red. So this is all are electromagnetic radiation, children. Okay. ओके सर They Yes, will sir. be having, yes, different wavelengths. Yes, sir. Different wavelengths. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Different wavelength. Okay. Now tell me which one is having more energy. Red. Red. रेड Red is having less energy. यस एनर्जी Violet. Okay. Violet. वायलेट And violet is having high energy. Yes, sir. यस सर Yes, sir. If it is a high energy, means its frequency is high Yes, sir. and its frequency is low, right? Okay. Yes, sir. यस सर Okay, children. Yes, Okay, sir. sir. यस सर Those who did the mistake in telling high energy, low energy, please follow it. Okay. Okay. sir. Yes, sir. Okay, Why? sir. Because now I told you energy is equal to h nu. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. So if energy is high, it means frequency is high. Yes, sir. Yes, Lambda sir. is low. Yes, sir. Lambda is more, right? Yeah. Yes, sir. And Sure. velocity is constant, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, Yes, children. sir. Yes, sir. Yes, sir. So, okay. Today you remember this thing. From after this, it is known as ultraviolet electromagnetic radiation, and below this, it is known as infrared radiations. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So today we will finish here only, up to here only. So in study hour we'll discuss more problems on it. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Did you understand photoelectric effect? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is this photoelectric effect? What is this? Removing of electron. Removing of photon with the Yes. Removal of With the electron help of photon. with the help of photon. Okay. Okay, sir. Sir, it Yes, was sir. introduced by Einstein. Planck's. Black. Oh. Planck's Planck, quantum theory first. Okay. What Einstein gave, I will tell you later. Yes, sir. Bye bye. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Have a Bye, nice sir. day.